Hello children, I am Kritika Mil and I am taking English subject and started first chapter. It's your first chapter. It has a poem. In this poem, a kid tell everyone to good morning. Like good morning sky, good morning sun, good morning little winds that run, good morning birds, good morning trees and creeping grass and brownie bees. Means she want to tell good morning to sky, sun, little winds, birds and trees and grasses and brownie bees. How did you find out it was day? आपको कैसे पता चलता है कि ये एक दिन है? Who told you night had gone away? और कैसे पता चलता है कि रात जा चुकी है? Means वो सबसे क्वेश्चन कर रही है कि आपको कैसे पता चलता है कि दिन आया है और रात जा चुकी है? I am wide awake. I am up now too. I will be right out to play with you. और मैं पूरी तरह से सोकर उठ गया हूँ. Wide awake means सोकर पूरी तरह से उठ गया हूँ and मैं रेडी हूँ आपके साथ खेलने के लिए. In this poem we can see some new words. Creeping. Creeping means grasses जो creeping कर रही है means लहरा रही है. Word with winds. And awake means जागना means आप sleep के बाद जब उठते हैं that is awake. Gone away. Gone away means पूरी तरह से चले जाना means night gone away. Thank you. Okay. Now I have completed the poem. In this chapter, it has a one poem I have completed, and after we will start a chapter, The Magic Garden. The name of chapter is The Magic Garden. The Magic Garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. Means स्कूल का प्लेग्राउंड है उसको एक गार्डन बताया है, एक मैजिकल गार्डन जिसमें कौन कौन से फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, सनफ्लावर, रोजेस जो वॉल के साथ लगे हुए हैं. मींस यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर फ्लावर्स, सनफ्लावर, रोजेस, पॉपीज, पेंसीज. The sunshine fell on this garden more than one on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundred of little gardeners." They were the children from the school. और उस गार्डन में चारों तरफ सनशाइन है, मीन सनशाइन है, लाइट है, सन की लाइट है और फ्लावर्स डांस कर रहे हैं हैप्पीली, गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. क्या बातें कर रहे हैं? We have hundred of little gardeners. मीन्स हमारे पास hundred of little gardeners है. वो कौन है? They were the children from the school. वो कौन है? स्कूल के चिल्ड्रन है. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक सनी मॉर्निंग को मीन्स एक मॉर्निंग के टाइम पर फ्लावर्स और बर्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं. नाउ लेट मी सी कि क्या बातें कर रहे हैं. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. जो पॉपी फ्लावर है वो क्या बोल रहा है कि मैं सारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ बट कुछ छोटे बच्चे हैं जो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं. क्यों? I like them to drink their water cans and water my thirsty roots. मुझे अच्छा लगता है कि जब वो मेरी thirsty roots को वाटर देते हैं. किससे देते हैं? वाटर कैन से. किस चीज का यूज करते हैं वो? वाटरिंग कैन का वाटर देने के लिए मेरी रूट्स को यूज करते हैं. Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. Same thing, marigold ने भी बोला हाँ मुझे भी बॉयज बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और वो ग्राउंड को अच्छे से डिग करते हैं. जब भी हमें नया प्लांट लगाना होता है और उसको क्लीन करना होता है तो वो क्या कर सकते हैं? ग्राउंड को बहुत अच्छे से खोदते हैं, डिग करते हैं. In next page we can see there is a garden picture, flowers, some children are digging at the ground, some girls they are having watering can and water the plant. Next paragraph we can see we love the little children
The son said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. और वहाँ पर सन भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे भी आपकी हेल्प करनी है इन सब में। क्यों हेल्प करनी है? कि मुझे भी अच्छा लगता है कि जब चिल्ड्रन मेरी सनशाइन में खेलते हैं, जब बच्चे आते हैं और मेरी सनलाइट में वहाँ पर खेलते हैं, भागते हुए आते हैं। Suddenly the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. अचानक से वहाँ पर बच्चे आते हैं हंसते हुए, गाते हुए, तब फ्लावर्स अपना गाना बंद करके उन बच्चों को सुनने लगते हैं। मीन्स फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग, वो अपना गाना बंद कर देते हैं और बच्चों को सुनने लगते हैं कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। Oh, look at the tall flower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. उनमें से एक बच्चे ने कहा कि वो देखो कितना बड़ा सनफ्लावर है। ये सुनकर सनफ्लावर ने अपना हेड प्राउडली ऊपर किया। Another child said, I love the marigold in its golden dress. The marigold smiled happily. और फिर दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मैरीगोल्ड? क्योंकि उसके गोल्डन ड्रेस की वजह से, उसका जो गोल्डन कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैरीगोल्ड ये सुनकर खुश होकर स्माइल करने लगा। इन नेक्स्ट पेज we can see there is a sunflower and a kid. It was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. वाकई में ये एक मैजिक गार्डन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरीज भी हैं। फेरीज मीन्स परियां, जिनको हम परियां बोलते हैं। परियां भी हैं, वो डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं। किसके लिए? केवल बच्चों के लिए। वो सिर्फ चिल्ड्रन के लिए, जो चिल्ड्रन ही सुन सकते हैं, उनके लिए डांस कर रही हैं और गाना गा रही हैं। After a time, the fairies came out, dancing and talked with the children. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. कुछ टाइम बाद वहाँ पर फेरीज आती हैं, मीन्स गार्डन में फेरीज आती हैं, डांस करती हैं और चिल्ड्रंस के साथ बातें करती हैं। उनके ड्रेसेस किससे बने हुए हैं? उनके ड्रेसेस फ्लावर से बने हुए हैं। उनके विंग्स हैं वो सनशाइन से बने हुए हैं। The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. मैजिक गार्डन है वो नाइट में कैसा हो जाता है? एकदम क्वाइट, मतलब शांत। मीन्स जब रात को सब सो जाते हैं तो कैसा हो जाता है? वो शांत हो जाता है। फ्लावर्स और बर्ड्स सो जाते हैं और ड्रीम करने लगते हैं। ड्रीम मीन्स सोचने लगते हैं नेक्स्ट डे के बारे में कि नेक्स्ट डे वापस से बच्चे आएंगे। In this chapter, we can see this picture. There are fairies, children, and flowers. Now, new words. Magic. Magic means जादू. Garden. Garden means जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर प्लेग्राउंड है जो बच्चों का, वो एक गार्डन में है। तो गार्डन मीन्स बगीचा। गार्डनर्स, गार्डनर्स मीन्स हु टेक केयर ऑफ गार्डन। प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। सनशाइन मीन्स सनलाइट। गोल्डन मीन्स गोल्डन कलर। एंड ड्रीमिंग मीन्स assuming something about new. Now our first chapter is completed. Thank you. Hello children, as we discuss first chapter poem, I already explained you. Now we will start exercise. Some exercise you have to do in your notebook and some in textbook. Like question answers. These are question answers you have to write down in this notebook. नोटबुक में आपको यहाँ से राइट डाउन करना है। यहाँ पर आपको यूनिट लिखना है, यूनिट 1। उसके बाद यूनिट में यहाँ पे उसका नाम लिखना है। लाइक आवर यूनिट नेम इज गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे गुड मॉर्निंग राइट डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर पूरी
कंप्लीट पोयम राइट डाउन करना है और उसके बाद नेक्स्ट पेज से टर्न करके यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है और वो क्वेश्चन आंसर आपको लिंक के साथ आंसर सारे ऐड रहेंगे। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चंस के क्या आंसर्स हैं। Our first question is, why is the child in the poem happy? Child poem में happy क्यों थे? Because it is morning time. क्यों happy थे? क्योंकि it is morning time. वो good morning सबको बोल रहा है तो it is a morning time. That's why child are happy. To whom does the child say good morning? Child good morning किससे कर रहा है? The child said good morning to sun, sky, winds, grass and trees, birds, bees, all these things. Now third question, what does the child want to do? Child क्या करना चाहता है? तो child want to do play with these birds and bees. Child क्या करना चाह रहा है? To play outside with birds and bees. Now यहाँ से जो एक्सरसाइज है वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको रीड करना है। उसके बाद ये आपको लिखना है नोटबुक में। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम व्हिच राइम विद बीज। तो आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स मींस जिनका साउंड सेम होता है, लाइक बीज। तो यू कैन राइट देयर ट्रीज, दैट इज डे। यू कैन राइट से, ऐसे वाइज से। देयर इज टू, यू कैन राइट डाउन हियर YOU। ओके, what do you see around you during the day and at night? Draw in the two boxes given below and color the picture. यहाँ पे आपको पिक्चर ड्रॉ करना है, एक डे का पिक्चर ड्रॉ करना है। मींस जब सनलाइट होती है तो वहां पर क्या क्या चीजें हम देखते हैं वो, और यहाँ पे आपको नाइट का पिक्चर ड्रॉ करना है। नाइट में हम क्या क्या देखते हैं, लाइक डे में हम जैसे सन के साथ सारी चीजें देख रहे हैं, वैसे ही नाइट में हम मून, स्टार्स एंड स्लीपिंग बर्ड्स, स्लीपिंग एनिमल्स, इस तरीके से यहाँ पे हमें पिक्चर ड्रॉ करना है। राइट टू वर्ड्स ईच फ्रॉम द टू पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। जब आप वहां पर पिक्चर बनाएंगे डे और नाइट की, उसमें से आपको नीचे लिखना है कि आपने डे में कौन कौन सी चीजें ड्रॉ की हैं, जैसे लाइक सन, ऐसे ही नाइट में मून, स्टार। डे में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, एनिमल ड्रॉ कर सकते हैं, ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी हमें डे लाइट में हमें गार्डन में एज्यूम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमें टेक्स्ट बुक में ही रखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। हमें नोटबुक में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स वही करना है। नाउ ये सारी एक्सरसाइज है वो आपको रीड करनी है। सॉन्ग टाइम है, ये आपको सिर्फ ओरली करना है, सॉन्ग टाइम। नाउ पोएम के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज होने के बाद हम चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, वहां पे हम न्यू वर्ड्स भी लिखेंगे। न्यू वर्ड्स लिखेंगे, न्यू वर्ड्स मैजिक, गार्डन, और हमें इसकी प्रैक्टिस करना है ओरली बोलने के लिए। After that we have to write question answers. Why did the flowers love the little children? Flowers little children को क्यों लव करते थे, क्यों प्यार करते थे? Because वो little children flowers को water करते थे with their watering can and dig the ground well. Why did the birds love the children? Birds children को love क्यों करती थी? Because वो उनको food देते थे, means they give bread to birds. Name 5 flowers growing in the magic garden. और कौन कौन से 5 flowers हैं जो मैजिक गार्डन में ग्रो होते थे? तो रोज, रोजेस, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पैंसीज। What sound could the children hear in the garden? गार्डन में जो चिल्ड्रन है उनका क्या साउंड सुनाई दे रहा था कि वो हैप्पीली गाना गा रहे थे। नाउ ये भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है।
बोलना है जिससे आपको क्लियरली उसका साउंड आए, जैसे लिटिल, प्यूपल, पर्पल, हैप्पीली, स्लीपी, प्राउडली, स्लिपरी, थ्रस्टी एंड प्रिटी. Now these activity you have to do at your home. Different टाइप के आप फ्लावर्स अपनी बुक में रख सकते हैं. Now ये आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं राइट डाउन करना है. Word building. Name 2 words in each petal which you see in a garden. यहाँ पे आपको एक फ्लावर दिया हुआ है, इसके पेटल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे पूछा है आपसे कि इंसेक्ट्स मींस 2 इंसेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो आप गार्डन में देखते हैं. मींस यू सी इन अ गार्डन. तो इंसेक्ट है, जैसे हम इंसेक्ट में लिख सकते हैं बटरफ्लाई, बीज. ट्रीज में लिख सकते हैं हम कौन कौन से ट्रीज देखते हैं, लाइक मैंगो ट्री, बनाना ट्री. आप अपनी चॉइस से कोई और भी लिख सकते हैं. फ्लावर्स, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड. टूल्स कौन कौन से, जैसे सीजर्स, नाइफ, इस टाइप के हम टूल्स लिख सकते हैं. एक्स जो हमें गार्डन में जैसे खुदाई करने के काम आते हैं, प्लांटिंग करने के काम आते हैं, वो टूल्स के नाम लिखते हैं. उसके बाद है बर्ड्स. बर्ड्स हम कौन कौन सी देखते हैं, कोई भी बर्ड्स लिख सकते हैं जो गार्डन में हम देखते हैं, लाइक स्पैरो, पैरट, पिजन. ओके. नाउ ये आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है. यहाँ पे आपको एक इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन, कि आपके पास एक बिग गार्डन है, उसका एक पिक्चर ड्रॉ करना है. मींस आपको एक गार्डन का पिक्चर ड्रॉ करना है. उसमें आप ट्री, प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स, जो भी हम गार्डन में देखते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन. Write 3 sentences giving the names of the flowers that you might like to grow in your garden. और आप कौन कौन से फ्लावर्स के प्लांट हैं जो अपने गार्डन में लगाना पसंद करेंगे. तो ये आप अपनी कोई भी चॉइस से लिख सकते हैं. जैसे in my garden I would like to grow roses. In my garden I would like to marigold. In my garden I would like to grow sunflower. Now our exercise is complete. और इसके साथ में आपको एक्सरसाइज का पूरे आंसर्स जो है आपको जो भी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं वो आपको इसके लिंक के साथ में ऐड किए हुए मिलेंगे. ओके, थैंक यू.